Hello and welcome to another episode of Startup Sunday. In this episode, I have interviewed Mr. Vivek Mishra. He is the founder and CEO of FibroHeal. This startup's claim to heal wound using the silk fiber and is supported by BIREC under the government of India. So let's see how they heal wounds using silk fiber. But before that, don't forget to subscribe. So, sir, please introduce yourself and also let us know what FibroHeal is. Well, thank you very much, Nihal. And my sincere apologies that I have to postpone it a couple of times. But finally, we met and we are discussing it here today. And glad to know that, a computer science student discussing on biotech related matters. Because not to forget whether it is physics, chemistry, or biology. Bottom line is this whole stream is divided into different subjects, and we all work for a common purpose to serve the people, to serve the environment where we live, or to facilitate life for a betterment. That's what science is all about. Yeah. So basically, I'm the founder and CEO of FibroHeal. FibroHeal as a company, I will first tell the name of the company. Why FibroHeal? Because fibro word is derived from a protein which is present in silk. Silk has two proteins, sericin and fibroin. So fibro part we have taken from fibro, and heal means healing the wound. So healing utilizing silk protein. So basically we heal different types of non-healing, slow healing, and difficult to heal acute and chronic wounds utilizing biomaterial property of silk. We are a Bangalore-based startup, and India is the second largest producer of silk. Yeah. More than 85 lakh people are dependent on silk cultivation, or different value chain of the silk. So what we see, most importantly, what FibroHeal is trying to do is it wants to heal different types of wounds, whether surgical, traumatic, diabetic. We all know India is the diabetic capital of the world. Yeah. So we want to heal different types of non-healing, slow healing, and difficult to heal wounds utilizing silk, which has an economic multiplier potential. Because farmers grow silk. Yeah. Right now, 85% products are imported. So we are able to replace the actual products which are imported, and the money stays within the country. And lastly, the improving the quality of life of the patients, as well as various surgeons and medical fraternity. Yeah. So I will go on. Let's start our discussion. Yeah. So tell us where did it all started? Means what you were doing before starting Fibro Heals, what researches did you see before starting it, and how this idea strike to your mind that we can use silk fiber for healing wounds? Well, this is a long journey, and I was also a fresh graduate. Then went on to do my MBA, and then started typical corporate life. Worked for a couple of years in different at different positions, and I was having a pretty cushy job. But during some of the interactions, I was trying to find myself, what I want to do in life. Is it just a paycheck you want, or do you want to do something more than that? You want which gives you satisfaction. So there was an inner drive, and moreover, I always wanted to do something which is different, unique, and first of its kind. So in the process, I met various people who were doing various things. And while having lunch at one of farmer's house, he told me that silk saree stays for 100 years. A good silk saree is passed from generation to generation, from grandmother to mother to daughter-in-law. And again, that's where it strike in my mind that normally South Indian states are a bit warmer, so and even people are wearing silk and they're perfectly comfortable. And then we realize a live living worm stays inside a cocoon which is fully sealed, or and so it's a perfectly breathable material. Yeah. And then we realized a lot of research happening across the world. The grandmaster is a guy called Professor Kaplan, based at University of Tufts in US. Yeah. So he's the grandmaster. He has produced various things. And silk as sutures. Silk story itself is very fascinating. In World War One, before that, let me go back. 1 gram silk is stronger than 1 gram steel. Wow. I'm sure. This is something which is unique. So there was a silk commissioner based in West Bengal, Berhampur, because they used to make these ropes for parachute. So it's a material which has high tensile strength. It's a material which is breathable, and it's a material which has stayed with human skin for 3,000 years.
So this all things made it a perfect biomaterial to look into the medical aspects. And then we realized a lot of research has happened, and then we joined with various people, along with my co-promoters, Mr. Bharat Tandon, who was a pioneer in animal health business, and he built a good company and exited to Kargil for a pretty good deal. And he was one of the leading players in the market. I mean, he was the top most in the animal health sector. And secondly, we are lucky to have on board our second co-promoter, Mr. Subramaniam Sivaraman, who built second largest suture manufacturing company in the world called Sutures India. Now it is called Healthium Method. So we are the three people driving this concept, and often said that startup is not a glamorous thing, which people often feel. It's something where you have to keep your head down, focus on the task which is in the hand, and you need to find a purpose. I mean, it is said that when the why is clear, how becomes easy. So क्यों आप करना चाह रहे हो, अगर आपको वो पता है तो कैसे करना है वो रास्ता अपने आप मिल जाता है. So that's brief, and that's brief about my journey. So the question here comes that what problems exactly Fibro Heals is trying to solve? Means people with no bio background just can't understand, and most of my audience are computer science students. So no, I can understand. So I will explain this in Hindi. आप अगर देखो तो नॉर्मली इंडिया में 15 करोड़ डायबिटिक लोग हैं, 8 करोड़ डायबिटिक और 7 करोड़ बॉर्डर लाइन डायबिटिक. आज भी आप देखो तो वूंड एक ऐसा एरिया है जिसे कोई कवर नहीं करता. उस पर कुछ भी डाल दो, फेयर लवली लगा दो, कोलगेट लगा दो, रूरल एरियाज में जाओ कुछ भी होता है. एंड देयर इज इवन नो स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट कॉल्ड वूंड मैनेजमेंट इन हॉस्पिटल्स इवन. जैसे कार्डियक का हुआ, डायबिटिक का हुआ, सबका हुआ, लेकिन आपको वूंड का नहीं होता. और वूंड इज ए मेजर प्रॉब्लम, क्योंकि वूंड एक ऐसा होता है अगर वो नहीं हील हुआ तो इट में लीड टू सेप्टिसेमिया और द इन्फेक्शन इन होल बॉडी. द इन्फेक्शन कैन स्प्रेड इन द होल बॉडी, और इन्फेक्शन इज समथिंग व्हिच इज द मोस्ट ड्रेडेड टर्म इन मेडिकल टर्मिनोलॉजी. सो ये एक बहुत ही अनएड्रेस्ड मार्केट है, और देयर इज नो प्लेयर व्हिच इज एड्रेसिंग दिस थिंग, बिकॉज़ इट्स अ डर्टी मार्केट. यू हैव टू मेक योर हैंड्स डर्टी, यू हैव टू प्रूव दैट यू नो द प्रोडक्ट वर्क्स. ये आपके लिए इजी है क्योंकि आज के जमाना वैसा है कि जिसमें आप ऐप डाउनलोड करो कि आई हैव गॉट 1 मिलियन ऐप डाउनलोड्स एंड फंड मी, यू नो, आई कैन स्केल अप एंड दिस. बट वहां की केस में आपको रियल लाइफ दिखाना पड़ता है, एंड देयर इज अ जेन्युइन प्रॉब्लम, क्योंकि घाव भरता है. ये भी आपको बता दूं कि हर साल इंडिया में 1 लाख पैर कटते हैं घाव ठीक नहीं होने की वजह से. जान बचाने के लिए आप इमेजिन कीजिए 1 लाख पैर की कीमत क्या होती है. एक 40 साल का आदमी जो कि जॉब कर रहा है, जिसके फैमिली है, अकेला कमाने वाला है, उसको कितना प्रॉब्लम होता है. सो दैट इज द प्रॉब्लम व्हाट वी आर ट्राइंग टू एड्रेस with our technology. We were supported by Department of Biotech, Government of India, through a program called BIREC, and Department of ITBT and ST Government of Karnataka has also supported us. Department of Electronics, Information Technology, Biotechnology, Science and Technology, they call it in Government of Karnataka. So they have, and even today we were awarded a Startup of the Year award from Government of Karnataka for our innovation. So we have 2 patents in hand and 2 applied for. लेकिन सबसे बड़ी बेनिफिट क्या है कि आप एक रियल लाइफ में इमेजिन कि आप देखो कोई आदमी चल नहीं पा रहा है, बेड पे पड़ा हुआ है, और जब वो 15 दिन बाद आपके प्रोडक्ट्स यूज करके जब वॉक करता है और थैंकफुल करता है ना, दैट ब्लिस, दैट जॉय इज प्राइसलेस. ट्रस्ट मी. इन द प्रोसेस यू विल मेक मनी, इन द प्रोसेस यू विल यू नो जनरेट एम्प्लॉयमेंट, ऑल दैट, बट वो जो खुशी होती है दैट इज प्राइसलेस. सो दैट्स द प्रॉब्लम वी आर सॉल्विंग, हीलिंग वुंड्स यूटिलाइजिंग a local material. So, and as you have also said that this is a very capital intensive business. So how did you manage that capital, and how did the government programs help you in it? And how can somebody trying to solve these problems can find the opportunities that government is offering to them? Right. So we are bootstrapped company. We are supported by Department of Biotech, Government of India through BIREC. We are supported by Department of Information Technology, Biotechnology, Science and Technology, Government of Karnataka. They have also funded us, and also a organization called Center for Cellular and Molecular Platforms. So government के इतने सारे schemes है, right from idea to proof of concept till scale up. Government is quite proactive. आप Startup India के पेज पे जाइए, and there are people who actually respond. आप सोचते हो कि गवर्नमेंट कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, आप एक मेल डालिए, देखिए आपको रिस्पॉन्स आता है. within 48 hours you will get response from any government department for that matter. And there are a lot of schemes which support lot of startups in various sectors, not only biotech but across sectors. अगर आप देखिए, जैसे मैं रिसेंटली एग्जांपल दूं, जब टिकटॉक बैन हुआ था, जब चिंगारी आई थी, उस टाइम में there was lot of opportunity and there were a lot of awards, right from 5 lakh till 25 lakhs. Yeah.
So actual innovators या actual entrepreneurs वो होते हैं who believes in getting things done. I mean, आप start करो, there will be glitches. In the process, you improve on the glitches. Find a way. क्योंकि perfect environment कभी भी नहीं होगा, perfect environment आज भी मेरे लिए नहीं है. But you have to keep moving forward, and then you will realize कि you have walked many miles. ये सोचते हुए कि अभी ठीक होगा करते करते, and then you have created something. Okay. So that's how it happens. Yeah. तो अभी आपने जैसे कि अपनी टीम के बारे में बताया, बाकी दो को फाउंडर्स और बाकी और भी लोग होंगे आई एम श्योर। तो जी। जैसे कि आपके को फाउंडर्स जो हैं आपसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो आप Correct. उनसे कैसे मिले और वो कैसे आपके विजन के साथ अलाइन हुए, मतलब को फाउंडर्स आपने ढूंढे कैसे? को फाउंडर्स बिल्कुल वैसे ढूंढा जैसे आप मुझे ढूंढ लिए। इन शॉर्ट, कंप्यूटर साइंस होते हुए आपने बायोटेक में ढूंढ लिया, वैसे ही हमारे कॉमन कनेक्ट थे जो फर्स्ट को फाउंडर हैं टंडन जी। तो हमारे को फाउंडर थे जो इंडियन आर्मी के एक सर्जन थे। ये भी लाइफ में कुछ करना चाह रहे थे, हम भी कुछ कर रहे थे। उन्होंने हमें मैच मेकिंग किया, उन्होंने बुलाया कि आप लोग क्यों नहीं ट्राई करते हो, यू बोथ हैव सिमिलर इंटरेस्ट। सो मैं यंग एनर्जी, क्योंकि अक्सर होता है स्टार्टअप्स में ईगो का प्रॉब्लम होता है। अगर 3 सेम एज के लोग हैं तो मैं बड़ा कंपनी के भाड़ में। हम बड़े लोगों, एक्सपीरियंस लोगों के साथ प्लस पॉइंट क्या होता है कि वो दुनियादारी देखे रहते हैं, उन्हें पता रहता है, क्योंकि मैं जो यंग गाय, मैं काफी सारे एग्रेसिव डिसीजन लेना चाहूंगा जहां उनका एक्सपीरियंस मेरे लिए काम आता है कि नहीं। और प्लस बड़े होने के नाते कहीं ना कहीं हम लोग इंडियन कल्चर में ऐसा सीखे हुए हैं कि एटलीस्ट हम एक सुनते हैं, एंड इफ इट मेक्स सेंस, सो आपके गलती करने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं जब आपके पास एक्सपीरियंस को फाउंडर्स होते हैं। नंबर 1। नंबर 2, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, फोरम्स होते हैं, बट मैं हमेशा यही रेकमेंड करूंगा, गो विद समवन हु हैव अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड। जब भी आप को फाउंडर या जो भी हमारे दर्शक हैं, कभी भी आप को फाउंडर ढूंढते हो तो ऐसे बंदे के पास जाओ जो कि पहले या तो कुछ किया हुआ हो या जिसके अंदर बहुत हाई एनर्जी है। क्योंकि याद रखिए, आप स्किल सिखा दोगे, आप नॉलेज सिखा दोगे, ये सब आ जाएगा, लेकिन जो इंटीग्रिटी और जो एनर्जी होती है वो आप नहीं सिखा सकते। तो वो नेचुरली आपको आइडेंटिफाई करना होता है अपने को फाउंडर में, और ये देखना होता है कि कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स हो। आपके बेस्ट फ्रेंड है तो जरूरी नहीं कि आपका अच्छा को फाउंडर हो, आपकी जो वीकनेस है वो सामने वाले का स्ट्रेंथ होना चाहिए। So, मेरे हिसाब से ये सारे फैक्टर्स को देखना चाहिए जो यंग क्राउड है, जो आगे स्टार्टअप सेक्टर में कुछ करना चाह रहा है। ओके। सो अब थोड़ी सी साइंस अगर हम समझना चाहें, फाइब्रो हील का जो 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 3 प्रोडक्ट्स हैं, तो क्या आप उसके बारे में समझा सकते हैं कि एग्जैक्टली कैसे काम करती है? जी। सो अगर आप सिल्क प्रोटीन लेते हो, तो हम सब ने बायोलॉजी पढ़ी हुई 12th तक, हमें पता है कि प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स। आई मीन एमिनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन हर कोई बनाता है, ये मसल, ये सब हर किसी को पता है प्रोटीन्स के बारे में। सो सिल्क प्रोटीन भी बेसिकली एमिनो एसिड्स है, और एमिनो एसिड मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड और एमीन ग्रुप। सो डिफरेंट तरह के प्रोटीन्स होते हैं। नॉर्मली जो हम जो फाइब्रोइन यूज करते हैं उसमें 52 यूनिट का चेन होता है, जिसे हम जीएस कहते हैं, ग्लाइसिन एलानिन ग्लाइसिन एलानिन ग्लाइसिन सेरीन। और ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है एक स्कैफोल्ड जिसपे सेल अटैच होते हैं। तो नॉर्मली जब आप फाइब्रोहिल अप्लाई किए घाव पे, तो क्या होता है, घाव के अंदर बॉडी में आप मानिए तो बिलियंस ऑफ सेल्स हैं, तो ये सेल अटैचमेंट होते हैं और ये स्कैफोल्ड प्रोवाइड करता है जिसपे सेल एक दूसरे से अटैच होते हैं। इससे घाव जल्दी भरता है। मोर ओवर जो अगर आप देखोगे कि ये बॉडी पे रिएक्ट क्यों नहीं करता है, तो सिल्क प्रोटीन्स पे इपिटोप्स नहीं होते, जिसकी वजह से ये बॉडी की रिएक्टिविटी के चांसेस कम होते हैं। और सिल्क भारत मतलब ह्यूमन बॉडी के पास 3000 साल से है, तो वो ह्यूमन बॉडी हैज एक्सेप्टेड इट एज ए इन हाउस मटेरियल। और एमिनो एसिड का जो सीक्वेंस है वो बिल्कुल ह्यूमन स्किन की तरह होता है। दूसरा, सिल्क में नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर होता है। तो आप देखे होंगे कि नेचुरली, अगर आप थोड़ा सा आउट ऑफ सब्जेक्ट, आप किसी भी फैब इंडिया के स्टोर में जाओ तो उनके पास एक सिल्क प्रोटीन के रेंज है, अंडर आई क्रीम, हेयर मास्क, फेस वॉश, सिल्क प्रोटीन का। सो सिल्क के बहुत सारे वर्सेटाइल यूज हैं, और ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन काफी मतलब फास्टर सेल अटैचमेंट और फास्टर टिश्यू रिजनरेशन में हेल्प करता है, जिससे घाव जल्दी भरता है। आई डोंट नो मैं कितने आराम से समझा पाया, लेकिन मोस्टली यही कॉन्सेप्ट है, जो कि एक दूसरे से सेल अटैच होते हैं, जिससे कि घाव जल्दी भरता है। और जल्दी घाव भरेगा तो स्कार भी कम होगा, दाग कम आते हैं। जितनी जल्दी घाव भरेगा उतना कम स्कार होता है। ओके। सो वो हमारा सिंपल वे में कॉन्सेप्ट है। जैसा कि अभी मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था, तो उसमें आपने कहा था कि आप फ्यूचर में अभी कॉस्मेटिक्स में भी एंटर करने वाले हो।
तो मैं इसका अभी भी मैं स्टेटमेंट उस पर चुप रहूंगा, मैं वहां पे भी चुप था और अभी भी चुप रहूंगा। मैं इस बारे में भी कुछ नहीं कहना चाहूंगा, ओके ओके बोलो। क्योंकि एक सेक्टर है। एक और चीज, मैं अभी अपने सेक्टर डाइग्रेस नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि कॉस्मेटिक का मार्केट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बट एट द सेम टाइम वो बोलते हैं ना, सेक्रीफाइसिंग ए फॉर बी। आई वुड नॉट लाइक टू डू दैट। आई वुड लाइक टू सॉल्व ए जेन्युइन प्रॉब्लम, जिसके लिए मैंने बेड़ा उठाया। एंड इन द प्रोसेस अगर हम कॉस्मेटिक में घुसे या नहीं घुसे, आई डोंट नो, दैट टाइम एंड डेस्टिनी विल डिसाइड। या और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में मोस्ट ऑफ द जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं सारे मिडिल क्लास फैमिलीज को बिलोंग करते हैं, तो इसके अपने मतलब सर्कमस्टेंसेस होते हैं, सबके अपने होते हैं। और फैमिलीज जनरली स्टार्टिंग में नहीं अलाउ करती हैं आपको इस लेवल पे रिस्क लेना। तो आपके साथ ऐसा क्या हुआ था, और आपने उस कैसे मतलब लोगों को कन्विंस किया या फिर आगे बढ़े इसमें? सो मिडिल क्लास फैमिली का एक प्लस पॉइंट भी होता है क्या, उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है। Yeah. उनके घर के बच्चे नकारा होते हैं, उन्हें पता है हमारे बच्चे कुछ नहीं करेंगे, सो दे हैव नथिंग टू लूज, वेदर इट वर्क्स इन फेवर और अगेंस्ट, आई मीन ऑन ए लाइटर नोट। बट क्या होता है, आपने बिल्कुल सही बोला कि सारे फैमिली से थोड़े से एप्रीहेंशंस होते हैं, और वो जेन्युइन है, Yeah. क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं देखने के लिए कि आपके मतलब सोसाइटी का, दो रिलेटिव्स का, अपने पीयर ग्रुप का, तो वो भी अपनी जगह सही होता है। ये आपको डिसाइड करना पड़ता है, और ये मैं खुद भी सजेस्ट करूंगा कि आप जंप करने के पहले पहले अपने आप को सिक्योर कर ले। अगर आप स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, अगर आपके पास, या तो आप कॉलेज टाइम में कर लीजिए, या तो आप अपने पास 1 साल का अपने डे टू डे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस अपने अकाउंट में रख लीजिए, फिर आप जंप कीजिए। अगर आपके 1 साल का खर्चा आपके अकाउंट में आ गया है, और मींस जो जिसके ऊपर आप नहीं खर्चा कर रहे, कैलकुलेटेड यस, रिस्क लेने की बात है। हाँ, या बिल्कुल कैलकुलेटेड रिस्क आप लो। या तो कॉलेज टाइम में यू हैव नथिंग टू लूज, तो कॉलेज टाइम में कर लो, या तो उसके बाद आपके साथ, ताकि आप अगर, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, आप, मैं कंसिडर करता हूँ कि नॉर्मली जो कोई भी पास आउट होता है 22-23 की उम्र में, सो 23 से लेके 27 साल की उम्र मिस्टेक करने के लिए हुई होती है। उसके बाद मिस्टेक्स महंगे हो जाते हैं। मिस्टेक्स तो आदमी जिंदगी भर करता है, बट मिस्टेक्स बहुत एक्सपेंसिव हो जाते हैं उसके बाद। या सो जरूरी क्या है कि आप, सपोज आपने 23 में निकला, तो या तो आप उसके पहले स्टार्टअप कर लो, और अगर आपको ट्रैक्शन मिल जाता है तो आगे चलो। या फिर एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि ये स्टार्टअप्स में जो लोग ग्लैमर की बात करते हैं, जब आपकी टीम बढ़ेगी, शुरू में आपके 10 फ्रेंड हैं, आप रात को बीन बैग पे काम कर रहे हैं और पिज्जा मंगाए और खा लिया, लेकिन जब टीम बड़ी होती है, यू हैव सीनियर पीपल, यू हैव मिडिल एज पीपल, वी हैव वर्किंग वुमेन, वी हैव वुमेन विद चिल्ड्रन, तो आपको एक कल्चर सेट करना होता है। और जब तक आप किसी कंपनी में नहीं काम किए होते हो, तो आप कल्चर वो सेट करने में आपको खुद नहीं लगेगा कि मैं तो काम कर रहा हूँ, तो वो टीम वाला मैं 11 बजे मांगा तो 12 बजे क्यों जवाब नहीं दे दिया। आप ये भूल जाते हो कि उनके घर में एक छोटा बच्चा है, या कोई प्रेग्नेंट है, या मदर फादर है। सो जो ह्यूमन एस्पेक्ट है वो कई बार मिस हो जाता है स्टार्टअप। सो ये भी जरूरी है कि आप थोड़ा उस साइड समझ लें, एंड ट्रीट ह्यूमन एज ह्यूमन रेदर देन रिसोर्सेस। सो मेरा ये रिकमेंडेशन होता है कि अगर आप चाहो तो या तो आप कॉलेज में कर लो, या तो आप 2 साल का एक्सपीरियंस ले लो और थोड़ा सा समझ जाओ, and then you take plunge after having 1 year of expense in your account, ताकि अगर आप, worst case be prepared for failure होते भी हो तो you are not becoming a बोझ on anyone, आप अपनी जिम्मेदारी खुद उठाए हुए हो। That's what I feel. And एक और point, never rely on investors money, investors का पैसा consider it like a huge loan, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि लोग फैंसी ग्लैमरस वे में उड़ाते हैं। डोंट फॉरगेट कि आप पैसा जब अपने अकाउंट में लेते हो, अपने कंपनी के अकाउंट में, उसके पहले ये सोच लो कि वो पैसा आप कितना लौटाओगे और कब तक लौटाओगे और कैसे लौटाओगे। अक्सर मैंने देखा है कि लोगों के साथ कि पैसे आने के बाद वो सेलिब्रेट करते हैं। मैं इस चीज को बहुत गलत मानता हूं कि पैसा आना मतलब उसे सेलिब्रेशंस नहीं माना जाता है, क्योंकि आपका अपना पैसा नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जहाँ पे ये चीज बहुत खराब तरीके से वर्क भी की है। और इसकी वजह से होती है, क्योंकि ये एक और चीज मैं हाईलाइट करूंगा, 97% स्टार्टअप्स फेल होते हैं, सिर्फ 3% सक्सेसफुल होते हैं। कोई भी आपको उन 97% के बारे में नहीं बताता है, हर कोई आपको 3% के बारे में बताता है। ये भी जाननी जरूरी है कि वो 97% फेल हुए, और उनके बारे में जानना ये जरूरी है कि वो फेल क्यों हुए। क्या प्रोडक्ट मार्केट फिट सही नहीं था, क्या उनके पास एग्जीक्यूट करने वाली टीम सही नहीं थी? क्योंकि मैं आपको ये बता दूं, 60% केसेस में सिर्फ फंड प्रॉब्लम नहीं होता है, को फाउंडर्स की ईगो, टीम के साथ में अंडरस्टैंडिंग, एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज, टाइमिंग, गवर्नमेंट के लॉज, वो सारे सेक्टर्स आपको देखना होता है। तो वो सारे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल सारे फैक्टर्स को आपको कंसिडर करके आपको अपना स्टार्टअप करना होता है। तो इसलिए ये भी जरूरी है कि आप फेल्ड स्टार्टअप्स को आइडेंटिफाई करें, और उन्होंने क्या गलती की वो आप जाने, तो ये काफी बेनिफिशियल होता है। या
सो जैसे कि आप बता रहे थे कि ये फार्मर्स को एम्पावर कर रहे हैं आप, जो सिल्क फार्मर्स हैं उनको। तो ऐसे आपके पास कोई स्टोरीज अगर हो जो आप शेयर करना चाहें, जिसमें आपके प्रोडक्ट के थ्रू फार्मर्स का अच्छा एम्पावरमेंट हुआ हो। नहीं, बिल्कुल हुआ है, क्योंकि जब हम नॉर्मल जो हम सिल्क कुकून्स खरीदते हैं या जो हम कट कुकून्स खरीदते हैं, नॉर्मली कुकून क्या होता है, कुकून के अंदर कीड़ा होता है, उस कीड़े को गर्म खौलते हुए पानी में डाल दिया जाता है एक टैंक में। उसके बाद उसको थ्रेड को लेके रील कर दिया जाता है। जो कीड़ा होता है वो पानी पे तैरने लगता है बॉयल होके, और वो कीड़ा जो है वो चिकन इंडस्ट्री या ब्रॉयलर इंडस्ट्री जो बोलते हैं उसमें यूज होता है, जो चिकन और नॉर्मल जो फीड में यूज होता है। और वो जो मटेरियल हुआ वो नॉर्मली किसान की जो टाइम होता है वो 3 दिन से 5 दिन के अंदर उसे अपनी कुकून बेचनी होती है। और एक बार कुकून अगर तोड़ दिया, जनरली क्या होता है, कुकून है, कुकून के अंदर कीड़ा है, कीड़ा कुकून को तोड़ देता है अपने मुंह से एंजाइम निकाल के, और उसके बाद से उस टाइम वो मोथ बन जाता है, जिसे बटरफ्लाई भी बोलते हैं। हम्म। जो जो कैटरपिलर है, लार्वा है, वो मोथ में कन्वर्ट होता है, फिर वो मेल फीमेल की मीटिंग होती है और नेक्स्ट जनरेशन एग्स आते हैं और नेक्स्ट साइकिल लाइफ साइकिल शुरू होता है, और 3 से 5 दिन बाद वो बटरफ्लाई दोनों मर जाते हैं और वो एग्स बच जाता है। जब वो कुकून टूट जाता है तो उससे आपको यूनिफॉर्म थ्रेड नहीं आएगा, तो वो अनफिट फॉर रीलिंग हो जाता है। तो किसान के लिए वो लॉस है, वो पैसे का वेस्ट है। मेरा स्टार्टिंग मटेरियल है वो कट कुकून है या ब्रोकन वही। कुकून है। ओके, तो आप तो अभी वेस्ट से। आप मानिए जो चीज, हाँ, जो वेस्ट है जो किसान के लिए बिल्कुल, और किसान की आमदनी आपको भी पता है। हम्म। और एक और बात आपको बता दूं कि सिल्क बहुत ही कैश रिच क्रॉप है, क्योंकि आप सैलरी की तरह हर 45 दिन में आप अपने साइकिल रिपीट कर सकते हो। सिल्क की जो साइकिल होती है 45 दिन की होती है, तो ओके, हर 45वें दिन किसान चाहे तो उसकी आमदनी हो सकती है, तो मतलब एक सिल्क साल बेच में के। 8 या 9 साइकिल्स हो सकते हैं, हाँ, आठ 8 या 9 साइकिल्स होते साइकिल हैं, हो, 8 से। 8 साइकिल्स हो सकते हैं। हम्म। और अगर आप दूसरे साइड देखो तो कट कुकून जो है वो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है। कट कुकून से हम डिफरेंट पार्ट्स क्लीनिंग करते हैं, देन उसमें से 2 प्रोटीन पार्ट निकालते हैं, देन फाइब्रोइन को लेके हम आगे जाते हैं। तो जिस किसान से हम खरीद रहे हैं, ऑफ कोर्स हमें अपने किसान आइडेंटिफाई करने होते हैं जिनसे हम कुकून खरीदेंगे, क्योंकि हैवी मेटल्स नहीं होने चाहिए, पर्टिकुलर एक जो बेस्ट प्रैक्टिसेस, पैकेजेस ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस होते हैं वो उन्हें फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हम ह्यूमंस के साथ डील कर रहे हैं। हम्म। तो हम लोग पर्टिकुलर, जैसे हमने सपोज 50 फार्मर्स या 30 फार्मर्स आइडेंटिफाई किए, उन्होंने हमारे हिसाब से क्रॉप निकाला, वो हमने बाई बैक किया। तो आप देखिए तो उनके पास एक बेनिफिट हुई। और नॉर्मली अगर वो किसान हमारे हिसाब से कर रहे हो तो हम डेफिनेटली उनसे हायर रेट में लेंगे। अगर मार्केट में एक्स रेट से बिकने वाला है तो उनका जो ब्रोकन कुकून है या कट कुकून है, जो टूट गया है कुकून, उसे हम एक्स प्लस 2x या 3x ओके। पे हम खरीदते हैं। सो इससे उनको डबल बेनिफिट है, क्योंकि वो हमारे लिए वो एक्सक्लूसिवली कर रहे हैं। तो हाँ। इस तरह से हमने काफी इम्पैक्ट किया हुआ है। ओके। और अभी भी नेसेंट स्टेज में, अभी बहुत सारा करना, चीजें करनी बाकी है। लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट हो गया तो जो सिल्क आज खाली कपड़ों के नाम से जाना जाता है कि साड़ी और सूट्स के लिए, वो एक सिल्क का अल्टरनेटिव जाता है। आप सोचिए सिल्क प्रोडक्शन कितना बढ़ेगा और लोगों की आमदनी और एम्प्लॉयमेंट और रेवेन्यू जनरेशन कितना होगा। तो वो एक रास्ता है जो हम चलना चाहते हैं, और वो एक जो झंडा है वो हम लोग फहराना चाहते हैं कि सिल्क का नॉन टेक्सटाइल बायोमेटेरियल एप्लीकेशन हो। टेक्सटाइल बहुत हो चुका है, नॉन टेक्सटाइल एप्लीकेशन में इसकी बेनिफिट दी जाए। जी जैसे कि आप रेवेन्यू के बारे में बोल रहे थे, तो अभी लास्ट 3 साल से आप हो, 2017 में आपने शुरू किया था। तो अभी तक कितना आपका इन्वेस्टमेंट लग चुका है, और रेवेन्यू आपने ऑलमोस्ट कितना जनरेट किया होगा, और कैसे प्रोजेक्ट हो रही है आगे। जी, रेवेन्यूज ये सब थोड़े कॉन्फिडेंशियल नंबर्स होते हैं। हाउएवर मैं कुछ पार्ट, इन्वेस्टमेंट काफी हायर स्टेज में है, मैं क्वांटिफाई नहीं कर पाऊंगा नंबर अभी। ओके। और सेल्स के हिसाब से देखा जाए तो हमारा सेल अभी तक का थोड़े 4 करोड़ से थोड़ा ज्यादा हमारा सेल्स हुआ है अभी तक। नॉट टू फॉरगेट कि हम लोग अभी काफी सारे प्रोडक्ट्स लिए हैं, काफी सारे अप्रूवल्स हैं, क्योंकि जो हेल्थ केयर हम लोग इस सेक्टर में है उसमें आप प्रोडक्ट मार्केट नहीं कर सकते, उसमें रेगुलेटरी बैरियर्स बहुत ज्यादा होते हैं। जो अप्रूवल्स होते हैं, आपको सीडीएससीओ के अप्रूवल्स लेने होते हैं, ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया के लेने होते हैं, और उसके लिए आपको हर तरह के क्लिनिकल ट्रायल्स कराने पड़ते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3 एंड पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस, जो फेज 4 बोलते हैं। तो वो सब में टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो हमारा लिटिल मोर देन 4 करोड़ का हमारा रहा है टर्नओवर। और इन्वेस्टमेंट तो काफी लगा हुआ है, क्योंकि हमने अपना प्लांट क्रिएट किया है, ऑटोमेटिक मशीनरी लगाई है, कैपेसिटी 10x हमने इंक्रीज किया है अपना। तो ये सारे फैक्टर्स है, प्लस काफी सारा पैसा हम लोग आर&डी में इन्वेस्ट करते हैं। काफी रिसर्च। हमारी बड़ी एंड स्ट्रॉन्ग आर&डी टीम है, और काफी आईआईटी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के साथ हमारे कोलेबोरेशन है। काफी पीएचडी हमारे साथ, हमारे सब्जेक्ट से अपने पीएचडी थीसिस के प्रोजेक्ट्स है उनके हमारे साथ।
तो ऐसे काफी हमारे कोलेबोरेशन है लीडिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ, और इंडियन इंस्टीट्यूट के साथ हमारा काफी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के साथ हमारा काफी क्लोज कोलैबोरेशन है, जो इंडिया की टॉप मोस्ट साइंस बॉडी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। या तो उनके साथ हमारा काफी क्लोज है। इसके अलावा हमारे सारे प्रोडक्ट्स के ट्रायल्स वगैरह हमने एम्स में किया था, दिल्ली में एम्स में और कई अलग हॉस्पिटल्स में। तो ये सारी चीजें हैं, और इसके अलावा कई सारे अप्रूवल्स के लिए भी, जैसे हम लोग सीई सर्टिफिकेशन के लिए गए हुए हैं, जिसे कन्फर्मेट यूरोपियन कहा जाता है। आप जो यूरोपियन यूनियन का अप्रूवल होता है, उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट्स यूरोप में एक्सपोर्ट कर सकते हो। सो एक्सपोर्ट मार्केट के लिए सीई सर्टिफिकेशन जरूरी होता है। तो ये सारे फैक्टर्स हम लोग आ रहे हैं, हमें लगता है। तो हम लोग अभी इन्वेस्टमेंट फेज में ही हैं, तो इसलिए कहा जाता है बायोटेक लाइफ साइंसेस थोड़ा स्लो एंड स्टेडी गेम होता है, बट बड़ा गेम होता है। या सो दैट इज हाउ इट इज। एंड स्केल भी तो आप मतलब लार्ज स्केल को इम्पैक्ट कर रहे हो। अब डायबिटिक हाँ, इतने सारे लोग हैं और फिर मार्केट साइज भी बड़ा है। मार्केट साइज भी बड़ा है, और अगर आप देखिए तो हमने कहा 15 करोड़ आपके पॉपुलेशन, और बिग बास्केट, स्विगी और अमेजन, फ्लिपकार्ट की वजह से लोग और आलसी हो गए हैं, तो लाइफस्टाइल डिजीज और बढ़ेंगी, वुंड्स और इम्पैक्ट होंगे। तो ये सारी चीजों को देखते हुए हमें लगता है कि हम लोग वी आर ऑपरेटिंग इन ए निश मार्केट, और हम लोग काफी लोगों को लाइफ इम्पैक्ट कर सकते हैं पॉजिटिवली, एंड इन द प्रोसेस यू कैन जनरेट लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यू कैन इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, यू कैन मेक इंडिया प्राउड। और ये हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के विजन पे भी फिट बैठता है, आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत। हम लोग सारी चीजें इंड टू इंड प्रोडक्ट्स हमारे इंडिया के अंदर के ही हैं, हमारे यहीं के हैं, जो भी देखिए तो यहीं का बनाया गया है यहाँ के लोगों के लिए, और उसे हम एक्सपोर्ट करेंगे बाहर बेचने। ये एक बड़ा स्टेप फॉरवर्ड है। और सर जैसा कि आपका मेन जो प्रोडक्ट है वो रिसर्च ओरिएंटेड है, तो आप जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं जो बस क्या कहते हैं एक तरीके से जो सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड ही प्रोडक्ट सोच पाते हैं, तो उनको आप कैसे मतलब क्या एडवाइस देंगे कि रिसर्च ओरिएंटेड चीजें भी सोचनी चाहिए, और क्या फाइनल एडवाइस रहेगी आपकी? फाइनल एडवाइस मेरी होगी कि चाहे बिजनेस कोई भी हो, चाहे बायोटेक हो, आपके सॉफ्टवेयर रिलेटेड हो, हार्डवेयर रिलेटेड हो, या इंडस्ट्रियल हो, बॉटम लाइन एक ही होता है, आपको पब्लिक का ध्यान देना पड़ता है, अपने पर्सनल का ध्यान देना पड़ता है, और प्रॉफिट का ध्यान देना होता है। ये हुई बेसिक बिजनेस का रूल। लेकिन इन तीनों चीजों को सपोर्ट करने के लिए आपके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होना जरूरी है, और वो आपके लिए रिसर्च और इनोवेशन से ही आएगा। उबर ने ये बनाया तो मैं ये बना देता हूँ, फेसबुक ने ये बनाया तो मैं ये बना देता हूँ, टिकटॉक ने ये बनाया तो मैं ये बना देता हूँ। आप इस पे मत जाइए, कुछ अलग सोचिए, और जब तक आप कुछ अलग नहीं करेंगे, क्या पता जो आप अलग सोच रहे हो वही कल यूनिक हो जाए। बड़ा सिंपल एग्जांपल, जैसे फेसबुक, हम सभी इंडियंस को दूसरे के घर में क्या हो रहा है जानने की इच्छा होती है, फेसबुक ने वही किया है दूसरे की दीवार। तो कई बार आपकी जो ओरिजिनल आइडिया है आप उसे ओरिजिनल रखिए, एंड डोंट फॉरगेट कि आपकी जो ओरिजिनलिटी होती है वो सबसे बड़ी आपकी स्ट्रेंथ होती है। जो आप हो, जो आपकी ओरिजिनलिटी है, हो सकता है वो एक $1 बिलियन स्टार्टअप हो, और आप दूसरों के आइडियाज लेने के चक्कर में आप उसे बोलेंगे ना कि आपके पास सोना पड़ा हुआ है और आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। सो मेरा ये सजेशन होगा कि डेफिनेटली कटिंग एज होना चाहिए, और मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है डेफिनेटली यूटिलाइज कीजिए, बट सॉफ्टवेयर का प्रोडक्ट सोचते हो, कुछ इनोवेटिव चीजें सोचते हो, या कुछ अलग करने का सोचते हो, please ensure that there is some innovation, some genuine problem you are solving. Problem solving के नाम पे, and don't just jump into a startup for the sake of कि मैं आज स्टार्टअप में घुसा और कल मैं करोड़। हाँ, मैं एक बहुत ही सिंपल के चक्कर में नहीं भागना भाई, बिल्कुल। मैं एक बड़ा सिंपल एग्जांपल दूंगा। स्टार्टअप जो है वो एक शेर की सवारी है। आप शेर की पीठ पे बैठ जाते हो, देन आपको रियलाइज होता है कि आप एक ग्राउंड में हो। अगर आप शेर की पीठ से उतरे या कूदे तो शेर आपको खा जाएगा, और बाहर के लोग बगल से ताली बजा रहे होते हैं कि आप बहुत अच्छा शेर की सवारी कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि अगर आप कूदे और उतरे तो शेर आपको खा जाएगा। तो ये जरूरी होता है कि आपको, ये मैंने एकदम ऑन ए लाइटर नोट एक जोक बताया कि यही स्टार्टअप है, क्योंकि हर रोज आपको नए नए प्रॉब्लम्स आएंगे, को फाउंडर्स के प्रॉब्लम, रेगुलेटरी के प्रॉब्लम्स, अप्रूवल्स के प्रॉब्लम, टैक्सेस के प्रॉब्लम, फंडिंग के प्रॉब्लम, बैंकिंग के प्रॉब्लम। आप मतलब इट्स नॉट सो इजी व्हाट इट लुक्स लाइक। गवर्नमेंट काफी इनिशिएटिव्स लिया हुआ है, बट एट द सेम टाइम सो आपका वो पैशन जो होना चाहिए, वो पैशन होगा जो ये सारे प्रॉब्लम्स से को आपको ओवरकम करा के आपको आगे लेते जाता रहेगा हमेशा। सो ऑन दैट नोट आज का ये एपिसोड यहाँ पे खत्म करते हैं।
आई एम श्योर व्यूअर्स को बहुत इससे एक नई इंडस्ट्री के बारे में सीखने को मिला होगा और उनको कुछ वैल्यू एडिशन हुआ होगा. सो थैंक यू सर फॉर बीइंग ऑन द Thank शो. you very much, Nihal. Thank you very much.